A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Smita Panigre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 10, and we are reading Chapter 4, that is Carbon and its Compound, and today is the last class. Today is the 10th part of the chapter, and today we'll be doing discussing some of the textual questions. That's it, okay? So the class will be around 10-15 minutes. In the next class, I'll be coming with some of the extended times like 20-25 minutes of classes for your benefit, okay? So just keep your minds stable for 10-15 minutes, for the next 10-15 minutes. But before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Alright, let's start. So today we'll be discussing the exercise questions. In the previous class we discussed some of the in-text questions, and today we'll be discussing some of the textual or the NCERT's questions. Let's do it. So what is it? Okay. The first question is explain the covalent bond. ये previous class में भी question था that I skipped. So this class I'll be continuing it. CH3Cl का bonding करना है. CH3Cl डायग्राम देखो चुपचाप. यहाँ पे देखो C का होता है 6. Okay. So octet formation चाहिए. So for octet formation it cannot donate all the 6 or all the 4 in order to get 2. That's why it will be sharing its 6 electrons with different elements in order to form octet. Now the 6 electrons of our particular जो भी 4, हाँ जो कार्बन का मेरे 6 है वो क्या करेगा, अब शेयरिंग करेगा. कार्बन का जो 6 है वो शेयर करेगा, 3 शेयर करेगा विद दैट ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, और बाकी एक होगा क्लोरीन. ठीक है, तो मेरा 2 4 हो गया हाइड्रोजन. 2 4 जब हो गया हाइड्रोजन तो लास्ट में तो 4 है ना, तो 4 है उनमें से 3 लोग जो हो जाएंगे वो शेयर कर लेंगे हाइड्रोजन के साथ. ठीक है, तो हो गया. उसके बाद एक रहा ऑक्टेट से दूर. ठीक है, तो ये इसका 4 हो गया. तो पहला वाला जो है देखो ऊपर वाला हाइड्रोजन से बॉन्डिंग, नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन और एक जो बचा वो क्लोरीन से बॉन्ड करेगा. क्लोरीन का कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, चलो तो इसी वे में CH3Cl बनेगा. नाउ व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज का क्या एग्जांपल है और क्या होता है. होमोलोगस सीरीज क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनके सिमिलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. एग्जाम्पल है CH2, जैसे कि इथेन, पेंटेन, मीथेन, प्रोपेन, ये सब. और इथीन जब आएगा डबल बॉन्ड आएगा, इथीन प्रोपीन, मीथेन नहीं होता, इथेन प्रोपीन पेंटीन एंड ऑल. ठीक है, उसके बाद आ गया तुम्हारा इथेन प्रोपीन. ओके, वही सब है. उसके बाद इथाइन प्रोपाइन ऐसा होगा. तो एक सेम होमोलोगस ग्रुप जिसका स्ट्रक्चर सेम हो गया बट प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस ग्रुप सेम फॉर्मूला में ही जाएंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम. ठीक है, दिखने में सेम. नेक्स्ट इज इनके जो एडजेसेंट डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर masses of any two adjacent homologous is 14 u. All the compounds of homologous series show similar chemical properties and gradual molecular mass increase होता है. This is you have just read it by yourself. Okay. Why does meshel formation take place when soap is added to water? Again the same type of question. Will a meshel be formed in other solvents सच एज इथेनॉल ऑल्सो. ठीक है, तो पानी में मिशेल फॉर्मेशन होता है. क्यों होता है मिशेल फॉर्मेशन, क्योंकि हमें जो होता है जब भी हम एजिटेट करते हैं, रिमूव करना है हमें डस्ट को या डर्ट को या जो भी गंदगी है फ्रॉम दैट ऑफ द सोप, जिससे एक हाइड्रोफोबिक एंड और एक हाइड्रोफिलिक एंड मिशेल में फॉर्मेशन होता है एक सर्कल के फॉर्म में. हाइड्रोफोबिक इज अटैच्ड टू दैट ऑफ द डस्ट एंड हाइड्रोफिलिक इज अटैच्ड टू दैट ऑफ योर outer side, that is of water. And when the particular cloth is agitated after some time or at that time, it removes the dust along with the meshel. That's it. Okay, now meshel formation ऐसे होता है. ठीक है, खत्म खत्म. ओके, वेरी नाइस. नेक्स्ट आंसर मिसल. अच्छा, मिसल फॉर्मेशन सॉल्वेंट्स में इथेनॉल वगैरह में क्यों फॉर्मेशन नहीं होता, वाटर में तो होता है, अब इथेनॉल में क्यों नहीं होता. क्योंकि इथेनॉल में जो होता है कुछ फैटी एसिड्स होता है, सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट होता है फैटी एसिड के, जो कि एक्चुअली डिजॉल्व नहीं होंगे किसके साथ, सोप के साथ. इसी वजह से इथेनॉल में ये सब सॉल्वेंट्स में जो होते हैं, जो भी सॉल्वेंट्स है इथेनॉल एंड ऑल, तो फॉर्मल्डिहाइड, इन सब के साथ जो भी होता है सोप का फॉर्मेशन नहीं हो पाता मिसल, बिकॉज यहाँ पे जो होता है दैट इज सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं. नेक्स्ट, वाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूजेस फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन. ठीक है, ज़्यादातर जो होता है फ्यूल यूज़ होता है, कार्बन एंड कंपाउंड जो होता है फ्यूल होता है. क्यों यूज़ होता है,
कार्बन एट्स कंपाउंड गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा हीट दे सकता है, बहुत ज़्यादा, इसी वजह से इसी को फ्यूल के हिसाब से यूज़ किया जाता है। नाउ एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम विद हार्ड वाटर is treated with soap. Now what is scum? Let's read. Hard water contains salt. Hard water में हमें पता है कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर मिश्रण फॉर्मेशन नहीं होती और डस्ट रिमूव नहीं होता है। तो यहाँ पे जो होता है, जो इनसेल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इनसेल्युबल फोम जो फॉर्म होता है एक हार्ड वाटर में, उसी को हम स्कम बोलते हैं और वही मैग्नीशियम पोटेशियम का सॉल्ट है। ठीक है, और वो जो होता है वही स्कम जो होता है प्रॉपरली हार्ड वाटर को बाइंडिंग करने से रोकता है सोप के साथ, और ये साफ नहीं होते कपड़े। What change you will observe test soap litmus paper? सोप तो होता है बेसिक, लिटमस पेपर में क्या होगा? ब्लू। ओके, समझ गए? ओके, वेरी स्मॉल वन। नो आई हैव केप्ट जस्ट 2-3 क्वेश्चंस। पूरा भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने नहीं रखा था, 4-5 ही रखा था। ठीक है, बाकी सब तुम कर सकते हो, एमसीक्यूज है और फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी सब रिलेटेड है, दैट्स व्हाई आई हैव स्किप्ड इट टुडे। ऑफिशियली द चैप्टर इज ओवर। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल बी रीडिंग अ न्यू चैप्टर, और थोड़े बड़े बड़े लेक्चर्स आएंगे। अभी जो आ रहे हैं 10-11-12 मिनट्स के लेक्चर आ रहे हैं प्रीवियस 1 महीने से आई गेस, और पिछले 2-3 हफ्तों से। अभी जो आएंगे वो वाले तुम्हारे लंबे आएंगे, दैट इज़ ये वाला 20 मिनट्स के प्लस आएगा, 15-20 मिनट्स पे रेंज करेगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट 15-20 मिनट्स फॉर यू एंड माई बोथ ऑफ, हम दोनों के लिए अच्छा है। ठीक है, समझाने में भी कम टाइम हो जाता है। ठीक है, तो 15 मिनट और 17 मिनट सही रहेगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा करेंगे तो भी अच्छा नहीं है, सो शॉर्ट रखेंगे, अच्छा रखेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द पोर्शंस ऑफ दिस चैप्टर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई डेफिनेटली आंसर। ठीक है, और ये चैप्टर ख़त्म होता है तो इसको किताब से निकाल के रिवाइज करो, बिकॉज इट्स अ न्यू चैप्टर फॉर यू। सो मे बी कार्बन रिलेटेड चीज़ें, ये बहुत क्रूशल चैप्टर है और इसके बहुत सारे पार्ट जो होते हैं आपको फर्दर क्लासेस में हेल्प होंगे 11th-12th में। So make your concepts clear. If you aren't able to understand it, then let me know in the comment section below, और प्लीज़ थोड़ा अच्छे से पढ़ो ताकि आपको फर्दर क्लासेस में दिक्कत ना हो और डरना नहीं पड़ते रहो। ठीक है, तो आराम से धीरे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत सारे चैप्टर्स ख़त्म हो चुका है, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक एक करके बहुत सारे चैप्टर्स। उसके बाद धीरे धीरे दिसंबर तक आई गेस या जनवरी तक चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर टेस्ट होगा। ठीक है, और मंथली टेस्ट आते हैं हमारे चैनल में, तो उसको ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप से तुम लोग पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, ऐप्स में मंथली टेस्ट अपीयर करो, उससे तुम्हारा इवैल्यूएशन होगा। अच्छा, और क्वेश्चन आंसर जो भी हमारा है एनसीईआरटी का, टेक्सचुअल हो या इनटेक्स्ट हो, यानी कि एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइजेस हो उनको अपने से खुद प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज वो एग्ज़ाम्स में 70-80% उसी से आता है और 10-20% आपका अंदर से आता है। अंदर से मतलब क्वेश्चन अंदर से ही आता है, वो टेक्सचुअल नहीं होता है। टेक्सचुअल ही होता है, मतलब वही क्वेश्चन नहीं होते, चैप्टर के अंदर से होता है। सो उसको कर लेना। ठीक है, कर लेना जो भी इंटेक्स क्वेश्चन है और एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ डू इट। ठीक है, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ, इसको सारा कर लो और अच्छे से डायग्राम्स बनाना सीख लो, जो भी तुम्हारा डायग्राम है। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर्स एंड ऑल वो प्रॉपरली बनाना सीख लो। एंड पीरियडिक टेबल पूरा मुंह पे होना चाहिए 30 तक एनी हाउ। ठीक है, वैलेंसी लिखना पूरा आना चाहिए, डायग्राम्स बनाना आना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द स्मॉल कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। सो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ गए ना? सो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का सेशन। अगली बार हम एक नए चैप्टर से मिलेंगे अगले हफ्ते, न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, तो टिल देन ये चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत लंबा खींचा मैंने इस चैप्टर को, बट ये लंबा चैप्टर था, तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मुझे बताना। ठीक है, चलो चलो फिर साइनिंग ऑफ। एंड अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में पूरा अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स का 1 बाय 1 आपको सीरियली मिल जाएगा अरेंज्ड वे में। उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो और एक के बाद पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है, चलिए, ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।